हेलो ऑल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन। कोरिलेशन को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। रिग्रेशन गोज वन स्टेप बियॉन्ड कोरिलेशन इन आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट क्रिएट्स एन इक्वेशन जो कोरिलेशन में नहीं होती है to predict the values. So if you know the value of x, we can predict y, and if you know the value of y, we can predict x. So this is done by an equation जिसे हम regression equation कहते हैं. So in a scatter plot, we learned that the correlation between x and y are scattered in the graph in the form of dots, and we can draw a straight line covering the entire data. So that line is the regression line. So difference between these two statistical measurement is that correlation measures the degree of a relationship between two variables, whereas regression is how one variable affects the another variable. So basically we should know when to use correlation or regression. So correlation कब use करना है? For a quick and simple summary of the direction and strength of the relationship between two or more variables, and use regression when you are looking to predict, optimize or explain a number responses between the variables, means how x influences y. So this is the main difference between correlation and regression. टेबल की फॉर्म में भी देख लेते हैं. When to use, like when summarizing direct relationship between two variables, we use correlation, and to predict or explain numerical response, we use regression. दोनों में ही direction of relationship हम देख सकते हैं, strength of relationship भी दोनों में ही देख सकते हैं. जो cause and effect है वो correlation आपको नहीं बता पाता, वो only degree of relationship बताता है, वो हम regression के केस में देख सकते हैं. Able to predict and optimize, of course वो correlation में नहीं होता क्योंकि equation नहीं बनती, तो वहाँ हम predict नहीं कर सकते, regression में वो कर सकते हैं. X and Y are interchangeable, correlation के केस में yes, क्योंकि वहाँ कोई equation नहीं है, इसलिए dependent independent matter नहीं करता. regression के केस में हम वैसा नहीं कर सकते. यूज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ऑफ कोर्स कोरिलेशन में वो इक्वेशन नहीं है. रिग्रेशन के केस में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो मैंने यहाँ पर मैं लेकर चली हूँ इस पूरे लेक्चर में. कई जगह आप देखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी देख सकते हो, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी देख सकते हो. आपको समझना क्या है, आप एक इक्वेशन लेके चलिए, उसके बाद आपको उसमें इंटरसेप्ट और स्लोप क्या है वो देखना है. बाकी आपको कहीं भी कोई भी इक्वेशन मिले आप रिलेट कर सकते हैं. तो y बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. a और b है, वो दोनों है हमारे अननोन कांस्टेंट जो बताते हैं लाइन का पोजीशन. ये है हमारी इक्वेशन. एंड यहाँ पर जो a है, जनरली उसे बोलते हैं a is intercept, tells about the level of fitted line, so that the distance of a line above or below the origin, origin से कितना ऊपर या नीचे है वो आपका बताता है intercept, जिसे हमने a से डिनोट किया है. एंड b is the slope of the line, so that the change in the value of y for 1 unit of change in x, तो वो है आपका b. Based on kind of relationship between the dependent variable and independent set of independent variables, two broad categories of regression are there, that is linear and non-linear regression. If the relationship is linear and there is only one independent variable, then the regression is called as simple linear regression. And on the other hand, if the relationship is linear and the number of independent variables is 2 or more, then the regression is called the multiple linear regression. Simple है, 1 है तो linear, simple linear, and एक से ज़्यादा है independent variable तो वो होगा आपका multiple linear regression. And if the relationship between the dependent variable and independent variables is not linear, then the regression is called as non-linear regression. It is one of the most widely known modeling techniques. In simple linear regression,
Dependent variable is continuous. Independent variable can be continuous or discrete, and nature of relationship is linear. So this relationship can be expressed using a straight line equation जिसे हम linear regression भी कहते हैं. That best approximate all the individual data points means जो fit सारे जो data points हैं जिसमें most of the data points जिस line में cover हो जाएं. So simple linear regression established a relationship between dependent variable जिसे हम यहाँ पे y से denote कर रहे हैं and one independent variable x using a best fitted straight line also known as regression line. So the general form of simple linear regression is y is equal to a plus bx plus e. e यहाँ पर मैंने error लिया है, मैंने आपको previous slide में दिखाया था, वो आपका y is equal to mx plus b भी हो सकता है, mx plus c भी हो सकता है, depends आपके अलग अलग notes और books में. मैं यहाँ पर a plus bx लेकर चल रही हूँ. सो x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, a हमारा है इंटरसेप्ट, b है स्लोप एंड e है एरर टर्म. So general form of multiple linear regression equation is y is equal to a plus v1 x1 plus b2 x2 plus bn xn plus e, जहाँ पर y जो है आपका डिपेंडेंट और रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम रिग्रेसर भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एंड a एंड b आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड e जो है वो आपका है एरर टर्म. So for example, price of a product depends upon 3 promotional activities like discount, installment scheme and free installation. And if price of the product has linear relationship with each activity, then this relationship may be expressed as this equation, जिसे y is equal to a plus v1 x1 plus b2 x2 plus b3 x3 plus e से denote कर सकते हैं. So these benefits helps market researchers, data analysts, data scientists to eliminate and evaluate the best set of variables to be used for building regression models for predictive purposes. Next देखते हैं regression coefficient को. Like हमने previous जब correlation पढ़ा था तो correlation coefficient देखा था. So it is a constant जो generally v से represent करते हैं in the regression equation that tells about the change in the value of dependent variable corresponding to the unit change in the independent variable. तो ये दो हो सकते हैं. Like अगर x on y हम ले रहे हैं तो it is represented by the symbol vxy. It means the measure the change in x for the unit change in y. तो symbolically it is represented by vxy, that is r is equal to sigma x upon sigma y. और अगर y on x होगा तो vyx हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा r into sigma y upon sigma x. So properties देख लेते हैं regression coefficient की. Generally it is denoted by letter B. So for two variables x and y, two values of regression coefficient are obtained. One will be obtained when x is independent and y is dependent, and other when y is independent and x is dependent. So regression coefficient of y on x is represented by vyx and x on y as vxy. So ये दोनों जो हैं they must have the same sign. अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरे को भी पॉजिटिव होना होगा and vice versa. So if one regression coefficient is greater than unity, then other will be less than unity. So correlation coefficient is the geometric mean between regression coefficient. So R जो हमारा correlation coefficient था, जो regression coefficient का जो geometric mean होगा वो आपका हो जाएगा correlation coefficient. So arithmetic mean of regression coefficient is greater than the correlation coefficient. ये दोनों important relations हैं, इन पर based numericals भी आते हैं. And regression coefficient are independent of change of origin. Origin से मतलब but they are not independent of change of scale. So it means there will be no effect on regression coefficient if any constant is subtracted from the value of x and y. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, means origin आपका shift हो जाएगा plus minus, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. If x and y are multiplied by any constant, then the regression coefficient will change. तो वो आपका हो जाएगा स्केल, लाइक किसी पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं. तो नेक्स्ट है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है रिग्रेशन इक्वेशन के केस में. सो दिस इज अ मैथमेटिकल मेथड कॉमनली यूज्ड इन रिग्रेशन एनालिसिस टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन, जिसे हम रिग्रेशन इक्वेशन बोल रहे हैं. सो रिप्रेजेंट करता है दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को.
and when data points do not fall on a straight line, so thus leads to a possibility of depicting the relationship between the variables using several different lines. तो हम बार बार lines draw करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर maximum points cover हो रहे हों. So selection of each line may lead to a situation where the line will be closer to some points but further from the other points. So in that case we cannot decide which line can provide the best fit to the data. तो इस केस में हम यूज करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, एंड इट बेसिकली डिटरमाइन द बेस्ट फिट फॉर द गिवन ऑब्जर्व्ड डेटा. और उसमें वो क्या करता है ये मेथड, बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वर्टिकल डेविएशंस फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट टू द लाइन. तो जितने भी डेटा पॉइंट्स जो उस लाइन से दूर हैं, उस लाइन के आसपास नहीं है, उनसे उस लाइन से जो वर्टिकल डेविएशन है उसको वो एरर कैलकुलेट करके इक्वेशन में पुट करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. तो ये इक्वेशन है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो वाई आई है वो आपका एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वाई की, एंड जो वाई हैट है, वाई कैप है, जिसे हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाकर कैलकुलेट करते हैं, वो है आपका वाई हैट, जिसे हम एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई बोलेंगे फॉर द एनी जो भी आपको रैंडम वैल्यूज दी होंगी एक्स की. एंड ई है आपका रेसिड्यू और एरर, जो है डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल द बेस्ट फिट लाइन बिटवीन सेल्स ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो यहाँ पे इस ग्राफ में दिया हुआ है. तो यहाँ पर ध्यान हमें देना है, द लाइन इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑल स्कैटर्ड डेटा पॉइंट्स. तो इस लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं वो कवर हो रहे हैं. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो बेस्ट फिट लाइन है या बेस्ट फिट इक्वेशन है. सो अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, लाइक रवि फाउंड आवर्स ऑफ सनशाइन वर्सेस नंबर ऑफ आइसक्रीम्स वर सोल्ड एट द शॉप फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. तो रवि जानना चाह रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन के हिसाब से मैं पता लगा लूं कि मुझे कितनी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स सेल होने वाली हैं. सो अगर हम यहाँ एक टेबल में देखें तो x हमें दिया हुआ है, आवर्स ऑफ सनशाइन दिए हुए हैं, और ये नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड दिया हुआ है, ये हमें डेटा दिया हुआ है. सो हमें एक इक्वेशन बनानी है. सो यहाँ पे देखें तो मैंने लिया है, हमें m और b जिसे हम स्लोप कहते हैं वो फाइंड आउट करना है, एंड b और a और c y इंटरसेप्ट. अगर इन केस ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस b या mx प्लस c लेते हैं तो b और c उस केस में होगा, और मैं जो इक्वेशन ले रही हूँ y इज इक्वल टू a प्लस bx, उसके हिसाब से a हमारा इंटरसेप्ट होगा. ठीक है. सो ये हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो सबसे पहले हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है टेबल में, और ये क्यों कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये आगे हमें एक फॉर्मूले में यूज होंगी. सो यहाँ मैंने ये टेबल बनाया है जिसमें समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x स्क्वायर एंड समेशन ऑफ xy कैलकुलेट किया, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द स्लोप जिसका फॉर्मूला है ये, आपको जो याद रखना है. एंड पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लोप, दैट इज 1.518. नेक्स्ट हमारा क्या होगा, a को कैलकुलेट करना, जिसका ये फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, एंड उसका वैल्यू कैलकुलेट होके आया 0.3049. So finally we know the value of a and b, so we can create our equation of line. तो ये हमारा line of equation बना. सो इसके अभी हम यहाँ से फाइनल हमारा कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड y कैलकुलेट कर सकते हैं. तो x की वैल्यू लाइक फॉर 2 के लिए वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, 3 के लिए वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. ये y जो है यहाँ पर ये y कैप या y हैट वाला है, ये हमारा जो y है वो है हमारा ऑब्जर्व वैल्यू, ये है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है हमारा एरर या फिर e. तो यहाँ इस ग्राफ में देखेंगे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो वर्टिकल डेविएशन है लाइन से डेटा पॉइंट का, वो हमारा है एरर. सो ये हमारी इक्वेशन है. इस इक्वेशन को हम इस ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं. तो हमने देखा कि ये लाइन से जब हमने ये पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किया तो इस तरीके से हमारी ये लाइन आई. सो इट वर्क्स बाय मेकिंग द टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स एज स्मॉल एज पॉसिबल. जो ई स्क्वायर वाला जो इक्वेशन था उसके लिए ये लाइन है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड. तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप एंड इंटरसेप्ट.
सो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन जो आपको याद करनी है और जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड अगर हम बी एक्स वाई जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट के वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वेशन आपकी इस तरीके से हो जाएगी एंड इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स हो जाएगा आपका इस तरीके से. सो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन क्या होंगी. So if r is equal to 0 means regression correlation coefficient 0 है. So the variable, it means that there is no correlation, means variables are uncorrelated. Line of regression become perpendicular to each other. And अगर r का value 1 है तो it means the two line of regression coincide each other, means they are parallel to each other. Value of regression coefficient doesn't change with shifting of horizon, जो हमने पहले भी स्लाइड में देखा था. So change takes place with change in the scale. अगर स्केल चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमारा इक्वेशन चेंज होगा. तो वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारा ये इक्वेशंस के हम थ्रू देखेंगे चेंज को, लाइक u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन पी. तो ये जो बेसिकली जो इक्वेशन है हम जब फॉर्मूला देखेंगे कोई न्यूमेरिकल देखेंगे तो हमें समझ आएगी. And correlation coefficient between two variables is the geometric mean of both the coefficient, जो हमने previous regression coefficient में भी देखा था की प्रॉपर्टी में भी देखा था. and angle between the two regression line is tan theta is equal to 1 minus r square. r यहाँ पर correlation coefficient है upon r and sigma x sigma y is the standard deviation. आप इसे इस वे में भी देख सकते हैं कि थीटा अगर थीटा इज इक्वल टू लें तो tan इनवर्स हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में. एंड रिग्रेशन इक्वेशन इंटरसेक्ट एट एक्स बार एंड वाई बार. सो ये आपकी रिग्रेशन लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं. सो एक एग्जांपल देख लेते हैं इक्वेशंस का. सो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x and u is u plus 3x upon 10 equals to 10, sorry. And similarly the relationship between other two variable is y and v is 2y plus 5v is equal to 25. So coefficient of y on x is 0.80. तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है तो हमें coefficient of v on u पूछा है. तो u plus 3x is equal to 10 है तो u हमारा क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पर जब राइट हैंड साइड में साइड चेंज होगी तो ये हो जाएगा -3x. तो अगर u हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 10/3 अपॉन -1/3. सिंपल u की फॉर्म में निकाल लिया. एंड ऐसी इस इक्वेशन को हम v की फॉर्म में निकालेंगे, जो मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये इक्वेशन डिस्कस की थी u और v की फॉर्म में, क्योंकि स्केल चेंज हो रहा है तो स्केल चेंज होने की फॉर्म में आपकी इक्वेशन चेंज होगी. सो हमें वी नो द v by x जो होता है p अपॉन q इंटू v u. तो यहाँ पर p और q की वैल्यू होंगी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है नीचे जो दी हुई है ये आपकी होंगी p और q की वैल्यू. तो आपकी v by x आपको दिया हुआ है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो ये आपका दिया हुआ 0.80 जो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा. जो हमारा q का वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा 5/2 होगा 2.5 एंड p हो जाएगा 1/3 दैट इज 0.33 एंड v u. तो हमें कोफिशिएंट ऑफ v ऑन u ही कैलकुलेट करना है. सो सारी वैल्यू हमारे पास हैं तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें दिए हुए हैं v by x एंड v x y एंड हमें r x y कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. सो ये प्रॉपर्टीज से है क्वेश्चंस, हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. सो वी नो दिस फॉर्मूला एंड वी नो ऑल द वैल्यूज, सो वी कैन पुट द वैल्यूज एंड वी कैन फाइंड आउट द आंसर. ओनली वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, लाइक आपको साइन यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों साइन जो रिग्रेशन कोफिशिएंट के हैं वो पॉजिटिव हैं, तो फाइनल आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा. अगर इनकेस एक भी नेगेटिव होता तो उसी के अकॉर्डिंग आपका साइन चेंज हो जाता. So till this lecture we have discussed all these topics and next lecture में हम discuss करेंगे probability theory. Thank you.